یہ فائنل یہ ہے کہ ہمیں ٹکٹیں نہیں مل رہی، یہ بھی ایک قسم کا فائنل ہی ہے، کیونکہ ٹکٹوں کی کوئی فروخت کا جو طریقہ وہ نظر نہیں آ رہا۔ بھائی یہاں پر آ تو گئے ہمارے نوجوان بھی آئے ہوئے ہیں اور ہمیں ٹکٹ کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا۔ کرکٹ لورز ٹکٹ کے لیے لین بنا کر اسٹیڈیم پہنچ گئے، نہ ملنے پر شکوہ اور احتجاج۔ جو ہے وہ نہیں مل رہی ہیں پاکستان میں، انجوائمنٹ کا اگر کوئی موقع کوئی چانس ایسا آیا ہے تو اب ہمیں ایسے ذلیل کریں گے تو پھر کیا فائدہ ہمیں یہاں پہ آنے کا۔ جو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں، جو انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ تو یعنی کہ خریدیں گے، ہر حال میں خریدیں گے، ہم خریدیں گے ہر حال میں۔ یہ ریٹ بہت زیادہ ہے، یہ کرکٹ کو پروموٹ کرنے کی بجائے مجھے لگتا ہے یہ کرکٹ کو بیچ رہے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم کا مکمل کنٹرول فوج اور رینجرز کے حوالے، قریبی ہوٹلز بھی 5 مارچ تک بند کر دیے گئے۔ شناختی کارڈ کے بغیر کسی کو اسٹیڈیم میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دونوں ٹیموں کے 4 غیر ملکی کھلاڑی آئیں گے۔ نجم سیٹھی۔ عمران خان کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری بھی فائنل میچ کی مخالفت میں سامنے آ گئے، کہتے ہیں فائنل کے انعقاد کا فیصلہ مشکل اور بڑا سیکیورٹی رسک ہے، حکومت سیاست چمکانا چاہتی ہے۔ آئی تھنک میاں صاحب یا جو بھی اس کے آتھر ہیں وہ ایک پبلک شو کرنا چاہتے ہیں کہ جی پنجاب کتنا پیسفل ہے، تو میری نظر میں اٹ از اے ڈیفیکلٹ ڈیسیژن، سیکورٹی رسک ضرور ہے۔ ای سی او سمٹ کل سے اسلام آباد میں شروع ہوگی، جڑواں شہروں میں سیکیورٹی سخت۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے ترکی اور ایران کے صدور سمیت دیگر سربراہان مملکت کا اسلام آباد پہنچنے پر شاندار استقبال، گارڈ آف آنر، 21 توپوں کی سلامی بھی پیش کی گئی۔ ای سی او کا مقصد رکن ممالک کے عوام کے مفاد کا تحفظ ہے۔ تنظیم ایک نئے اقتصادی بلاک کی تشکیل عمل میں لائے گی۔ وزیر اعظم نواز شریف کا پیغام، کانفرنس کا ایجنڈا زمینی، ریل اور سمندری رابطے بڑھانا ہے۔ سرتاج عزیز۔ مہنگائی کا جن ایک بار پھر بوتل سے باہر آنے کو تیار، حکومت نے پیٹرول ₹1.71 اور ڈیزل ₹1.5 مہنگا کر دیا، وزارت خزانہ نے منظوری دے دی۔ فوجی عدالتوں کی بحالی پر تمام سیاسی جماعتوں کو اتفاق، لیکن پیپلز پارٹی کے تحفظات برقرار۔ عدالتوں کی مدت 3 کے بجائے 2 سال، مذہب اور دہشت گردی کو علیحدہ رکھا جائے گا، پارلیمانی نگراں کمیٹی بھی بنے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو پیپلز پارٹی کے جلد مان جانے کی امید۔ فوجی عدالتوں میں بحالی کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے وفد کی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے ملاقات، 4 مارچ کو اے پی سی میں شرکت کی دعوت دی، کپتان پہلے ہی شرکت سے انکار کر چکے۔ آصف اور بختاور نے زرداری کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ عرفان اللہ مروت سے ملاقات ضرور ہوئی لیکن پارٹی میں شامل نہیں کیا۔ آصف زرداری کی وضاحت، کہتے ہیں دکھ اور خوشی میں ہی دوستوں کا پتہ چلتا ہے، ذوالفقار مرزا کی پارٹی میں واپسی مشکل ہے۔ کچھ دوست آزمائے جاتے ہیں مصیبت میں، کچھ دوست آزمائے جاتے ہیں پاور میں، تو وہ پاور میں جو ہے نا وابلنگ کر گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پختونوں کی شکایات کے ازالے کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان، کہا کہ کسی کو سیاست چمکانے کی خاطر تفرقہ نہیں پھیلانے دیں گے۔ پنجاب میں بسنے والے پختون، بلوچ، سندھی اور کشمیری ہمارے بہن بھائی ہیں۔ وفاقی حکومت نے برہمداغ بگٹی اور شیر محمد عرف شیرہ کے ریڈ وارنٹ جاری کروانے کی منظوری دے دی۔ ایف آئی اے جلد درخواست انٹرپول کو بھیجے گی۔ 70 سال میں بلوچستان کا مسئلہ سمجھا ہی نہیں گیا، سی پیک میں بلوچستان کے لیے مختص رقم سے دوسرے صوبے میں منصوبے بن رہے ہیں۔ اختر مینگل کا تقریب سے خطاب۔ آج نیوز نے معاملہ اٹھایا تو ہی سندھ حکومت کو ہوش آیا،
कराची के इलाके जट लाइन में सरकारी स्कूल की अबतर सूरत-ए-हाल का नोटिस ले लिया। वजीर तालीम की डीसीओ को फौरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ मुजाहिरों और मालूमात के अफशा को साबिक सदर बराक ओबामा और उनके हवारियों की कारस्तानी करार दे दिया। मुल्क में गरीबों और बेसहारों को शजर फराहम करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी की 79वीं सालगिरह पर कौम का सलाम। वजीर आजम कहते हैं अब्दुल सत्तार ईदी ने बिला इम्तियाज सबकी खिदमत की। ईदी साहब आलम इंसानियत के लिए बाइस फख्र हैं। गूगल ने डूडल ईदी के नाम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे रद्दुल फसाद पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि पख्तूनों को निशाना बनाना दुरुस्त नहीं है। हम आपको आगाह कर रहे हैं कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की जानिब से। उनका ये कहना है कि इस ऑपरेशन के तहत पख्तूनों को निशाना बनाया जा रहा है और ये बात ठीक नहीं है। मीडिया से बात कर रहे थे अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह और जब उनसे सवाल किया गया ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से तो उन्होंने कहा कि उनको इस ऑपरेशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस ऑपरेशन के जरिए पख्तूनों को निशाना बनाया जा रहा है और पख्तूनों को निशाना बनाया जाना दुरुस्त नहीं है। मौजूदा हुकूमत ने मौजूदा आर्मी चीफ ने रद्दुल फसाद के नाम से एक ऑपरेशन नया शुरू किया है जो कंटिन्यूटी है ज़रब अज़ब की। ये तो फसाद को और बढ़ाने की बात है, कौमियतों को लड़ाने की बात है। मुझे समझ में नहीं आता कि हुकूमत क्या कर रही है। और यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग के जो पख्तून हैं उन लोगों ने एहतजाज किया है और एक सीनियर मिनिस्टर पंजाब के उसने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पख्तूनों को निशाना बनाया है। जो कल परसों उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे मेरी फेडरेशन को बहुत बड़े खतरात लाक हो सकते हैं। तो आपको बता रहे थे कि ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। रद्दुल फसाद से फसाद बढ़ रहा है, ये कहना है खुर्शीद शाह का। वो मजीद कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत कर क्या रही है। नून लीग के पख्तूनों ने भी एहतजाज किया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर पख्तूनों को निशाना बनाया जा रहा है। और अब जिक्र करेंगे DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का, जिनका कहना है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद में तमाम ऑपरेशंस को यकजा किया गया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे और अवाम मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को कामयाब बनाएंगे। तो आपको बता रहे हैं कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद में तमाम ऑपरेशंस को यकजा कर दिया गया है, ये कहते हैं DGISPR। और वो कहते हैं कि सब मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को कामयाब बनाएंगे। ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों के सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा है। और अब जिक्र करेंगे वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का, जिनका कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद में किसी खास कम्युनिटी को नहीं बल्कि हर शहरी को स्क्रूटनी के अमल से गुजरना पड़ेगा। अमीर मकाम ने मुतालबा किया कि पंजाब में बसने वाले पख्तूनों के खिलाफ कार्रवाई पर मामलात को देखने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किया जाए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मुकाम के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया है कि पख्तून हमारे भाई हैं। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में आम शहरियों को भी इस मामले से गुजरना पड़ेगा। सिंध और KPK में बाद सियासी जमातें और मनफी लोग ऑपरेशन की आड़ में मुल्क दुश्मनी को फरोग दे रहे हैं। अमीर मुकाम का कहना था कि नादरा पख्तूनों के शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट के मसाइल का हल निकाले। उन्होंने कहा कि पंजाब में बसने वाले पख्तूनों के खिलाफ कार्रवाई पर मामलात को देखने के लिए फोकल पर्सन और कमेटी कायम की जाए।
और अब जिक्र होगा PSL का। आरज़ू तो सभी की है, लेकिन कौन होंगे वो खुश नसीब जो जाएंगे कज़ाफी स्टेडियम PSL 2 का फाइनल देखने। क्योंकि अली जगह जो है वो बस 26,000 शायकीन की है, लेकिन जाना हर कोई चाहता है। करोड़ों लोग हैं लाहौर में इस वक्त जो जाना चाह रहे हैं, लेकिन टिकट्स भी बहुत ज्यादा महंगे हैं और गरीबों के जो अरमान है इन्हीं महंगे टिकट्स ने उन पर पानी डाल दिया है। बिल्कुल, और सबसे सस्ता टिकट तो 500 का है, लेकिन इसका हुसूल भी जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। PSL फाइनल के वेन्यू का मसला हल हुआ तो टिकट्स के हुसूल की जंग छिड़ गई। टिकट के इंतजार में यहाँ पर बैठ के लगाएंगे। हर एक को स्टेडियम में बैठकर मैच देखने का शौक है, लेकिन PCB को सिर्फ पैसों से गर्ज है। उनके लिए भी है 500 का टिकट है, लेकिन ये टिकट तो बढ़ाना पड़ेगा। 500 रुपए वाला जो टिकट है जी, उसकी 10,000 लोगों को अकोमोडेट कर लेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा पूरा। हो जाएगा। आवाम का शिकवा भी बजा है, 500 वाले सिर्फ 10,000 टिकट्स। शौक तो है लेकिन जेब इजाजत नहीं देती। ये रेट बहुत ज्यादा है। ये क्रिकेट को प्रमोट करने की बजाय मुझे लगता है ये क्रिकेट को बेच रहे हैं। पाकिस्तान में एंजॉयमेंट का अगर कोई मौका, कोई चांस ऐसा आया है तो अब हमें ऐसे जलील करेंगे तो फिर क्या फायदा हमें यहाँ पे आने का। फाइनल से पहले ये फाइनल ये है कि हमें टिकटें नहीं मिल रही, ये भी एक किस्म का फाइनल ही है, क्योंकि टिकटों की कोई एंजॉय करना चाहते हैं वो तो यानी कि खरीदेंगे, हर हाल में खरीदेंगे, हम खरीदेंगे हर हाल में। बहुत ज्यादा रेट है, मगर फिर भी अगर अवेलेबल हो तो बहुत अच्छा है। मैं इंशाल्लाह 4,000 वाली टिकट खरीदूंगा, लेकिन जो है ना ये महंगी हैं टिकटें, सस्ती होनी चाहिए। महंगे टिकट्स और हुसूल का झंझट, अक्सरियत को तो ये मैच घर बैठकर ही देखना पड़ेगा। वाह PCB वाह। नाज़रीन, सिर्फ लाहौर ही नहीं पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं इस मैच को देखना चाहते हैं। और अली, मैं आपसे पूछूंगी, आप जाएंगे मैच देखने? यकीनन देखने के लिए जाएंगे, लेकिन अगर टिकट मिल गया तो, क्योंकि ये अच्छा, $1 मिलियन तो क्वेश्चन है कि टिकट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, ये बड़ी मुश्किल शर्त है। नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं न्यूज शो में और बात कर लेते हैं PSL ही के फाइनल के लिए कदाफी स्टेडियम का जो मुकम्मल कंट्रोल है वो फौज और रेंजर्स के हवाले कर दिया गया है। फाइनल के लिए हतमी सिक्योरिटी प्लान भी तश्कील दे दिया गया है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। 5 मार्च को होने वाले फाइनल के लिए कज़ाफी स्टेडियम का कंट्रोल पाक फौज और रेंजर्स के हवाले कर दिया गया। सिक्योरिटी के हवाले से मरकजी कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। कज़ाफी स्टेडियम में सिक्योरिटी के हवाले से इजलास भी हुआ, जिसमें पाक फौज और रेंजर्स के अफसरान, CCPO लाहौर अमीन बैंस और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने शिरकत की। स्टेडियम की हदूद में वाक़ तमाम होटल्स और शॉपिंग सेंटर्स को भी 6 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने PSL फाइनल के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। प्लान के मुताबिक फाइनल के लिए 9 मकामात पर पार्किंग के इंतजामात होंगे, जिनमें मुस्लिम टाउन अंडरपास, FC कॉलेज मेन पार्किंग, PCSIR ग्राउंड, लिबर्टी चौक, तारिक रोड, जामे शीरी पार्क, H क्रीम बख्श, सन फोर्ट होटल और दुपट्टा गली शामिल हैं। 9 पार्किंग पॉइंट्स में 2,860 गाड़ियों और 15,500 के करीब मोटरसाइकिलों की पार्किंग की गुंजाइश होगी। फाइनल मैच से एक रोज पहले पार्किंग पॉइंट्स को बम डिस्पोजल कार्ड से क्लियर करवा के सील कर दिया जाएगा। तो जैसे जैसे PSL फाइनल का दिन करीब आ रहा है, शायकीन का जोशो खरोश उरूज पर पहुंच चुका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बाद अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इनेकाद की मुखालफत कर दी है। वो कहते हैं कि मियां साहब ये बताना चाहते हैं कि पंजाब में अमन है, दर हकीकत हुकूमत का ये मुश्किल तरीन फैसला है। किसी को है इतवार का इंतजार। पाकिस्तान सुपर लीग 2 का फाइनल तो 5 मार्च को होना है, जिसके लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। एक तरफ पूरी कौम खुशी से निहाल है, वहीं आसिफ जरदारी ने भी PSL पर दिल की बात कह दी। पहले तो उन्होंने बताया कि उन्हें क्रिकेट से कोई लगाव नहीं। बेटा, क्रिकेट मेरी फेवरेट गेम नहीं है। PSL फाइनल के इनेकाद के हवाले से सवाल हुआ तो वो भी इमरान खान के बयान के हामी निकले। कहा कि इस फैसले से हुकूमत सियासत चमकाना चाहती है, तमाम फाइनल का लाहौर में होना सिक्योरिटी रिस्क जरूर है। PSL आई थिंक मियां साहब या जो भी इसके ऑथर हैं वो एक पब्लिक शो करना चाहते हैं कि जी पंजाब कितना पीसफुल है। तो मेरी नज़र में इट इज़ अ डिफिकल्ट डिसीजन, सिक्योरिटी रिस्क जरूर है। मामले पर गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी कुछ ऐसे ही बयान दिया था। मेरे ख्याल में इतना ये बुरा आइडिया है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इससे क्या हम गेन क्या करेंगे।
اگر سارے لاہور میں فوج جا کے اور سیکیورٹی الارم کر کے اور میچ کروانا ہے، اور وہ بھی ایک پی ایس ایل کا میچ، وہ کوئی انٹرنیشنل میچ بھی نہیں ہے۔ کپتان کے بیان پر کافی تنقید کی گئی، لیکن عمران خان تو ٹویٹر پر آج بھی سرگرم رہے۔ انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ اسٹیڈیم کے گرد کڑی سیکیورٹی حصار میں ہونے والے میچ سے سیکیورٹی کا معاملہ مزید نمایاں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ خدا نہ کرے اگر کچھ برا ہوا تو انٹرنیشنل کرکٹ کو آئندہ 10 برس کے لیے خدا حافظ کہنا پڑے گا۔ ابھی آپ سے شیئر کریں گے ہماری اب تک کی ہیڈ لائن سٹوری، جو ہے اقتصادی تعاون تنظیم کے 13ویں سربراہی اجلاس سے متعلق، جو کل اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ اس کانفرنس کا ایجنڈا زمینی، ریل اور سمندری رابطے بڑھانا ہے۔ رکن ممالک کے سربراہان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور وزرائے خارجہ کی سربراہی اجلاس کا ایجنڈا طے کر لیا گیا ہے۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے 13ویں سربراہ اجلاس کے لیے مہمانوں کی آمد جاری ہے۔ کانفرنس کا ایجنڈا زمینی، ریل اور سمندری رابطے بڑھانا ہے۔ کانفرنس میں ترکی، ایران، آذربائیجان، ترکمانستان کے صدور، جبکہ قازقستان، کرغستان اور پاکستان کے وزیر اعظم، ازبکستان کے نائب وزیر اعظم اور افغانستان کا وفد شامل ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی کے اسلام آباد آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وفاقی وزیر سفیران عبدالقادر بلوچ نے صدر حسن روحانی کا استقبال کیا اور انہیں گلدستہ پیش کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا بھی پرجوش استقبال کیا گیا۔ معزز مہمانوں کی آمد پر 21 توپوں کی سلامی پیش کی گئی، جبکہ فورسز کے چاق و چوبند دستوں نے سلامی پیش کی۔ سربراہی اجلاس میں توانائی، انفراسٹرکچر، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات چیت کی جائے گی۔ سربراہی کانفرنس کے اختتام پر اسلام آباد اعلامیہ جاری کر دیا جائے گا۔ کانفرنس میں ویژن 2025 کا اعلان بھی متوقع ہے۔ اقتصادی تعاون تنظیم کانفرنس میں چین کے نائب وزیر خارجہ خصوصی دعوت پر شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے مکمل سیکیورٹی انتظامات وضع کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مقامی تعطیل ہوگی۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف نے اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وہ ای سی او ممالک کے نئے اقتصادی بلاک کی تشکیل کے لیے پر امید ہیں اور تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ It is a privilege for Pakistan to host the 13th ECO summit on the 1st of March 2017, and I would like to extend a very warm welcome to all our honorable guests to our beautiful country. Surely, the Islamabad Declaration to be adopted at the summit will reflect the joint aspirations of the people of the region. I have firm conviction that expanded connectivity, enhanced trade and deeper economic cooperation would transform our region into a bastion of progress, prosperity and peace. ECO states are the proud custodians of the Silk Road legacy, and inspired by the Silk Road spirit of openness, Pakistan would be more than happy to provide ECO states connectivity through its ports. I am confident that very soon ECO will develop into a key regional economic bloc. ایشیا کے اہم خطے والے ممالک کی تنظیم ای سی او کا سربراہی اجلاس کل سے اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے۔ اس کانفرنس کی اہمیت کیا ہے، یہ ہمیں بتائیں گے اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف شوکت پراچا۔ ای سی او یعنی اقتصادی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے سربراہان کا یہاں آنا اور پاکستان میں اس کا اجلاس ہونا جو کل ہو رہا ہے، اس کی نہ صرف پاکستان کے حوالے سے اپنی اہمیت ہے بلکہ اس خطے کے حوالے سے بھی بڑی اہمیت ہے اور سی پیک کے حوالے سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پاکستان میں جو سلامتی کی صورتحال کے بارے میں بیرونی ملک جو تاثر پایا جاتا ہے، ایک تو اس کو کلیئر کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ ترکی کے صدر، ایران کے صدر، آذربائیجان کے صدر، ترکمانستان کے صدر اور قازقستان
कजाकिस्तान किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म जब पाकिस्तान में होंगे तो ज़ाहिर है इन ममालिक में एक मैसेज जा रहा है कि यहाँ ना सिर्फ ये लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान में बड़ी कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। खित्ते की कनेक्टिविटी के हवाले से इस सरबराही कॉन्फ्रेंस का जो 13वीं कल हो रही है इस्लामाबाद में, थीम ही यही है कि किस तरह से रवाबत को फरोग देकर खुशहाली लाई जा सकती है। सी पैक के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट ये कॉन्फ्रेंस है। चीन इस ECO तंजीम का मेंबर नहीं है, लेकिन चीन को खसूसी दावत दी गई है कि एग्जीक्यूटिव फॉरेन मिनिस्टर यूसी जोंग कल इस सरबराही इजलास में मौजूद होंगे। बुलेटिन में आगे देखिए। राजी भी नहीं और मान भी गए। खबरदार, होशियार, पेट्रोलियम की कीमतें अब रुपए में बढ़ेंगी। वेलकम बैक अगेन। अब आपको बताएं कि हुकूमत ने मार्च के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल तकरीबन ₹2.25 और डीजल ₹1.5 फी लीटर महंगा होगा। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने नई कीमतों का ऐलान किया और ये भी बता दिया कि आइंदा पेट्रोलियम निर्खों में पैसों का चक्कर खत्म कर दिया गया है और कीमतों का तयन अब सिर्फ रुपयों में होगा। में ₹1.31, 71 पैसे, डीजल में ₹1.52, केरोसिन ऑयल में राउंडिंग की वजह से 75 पैसे और लाइट डीजल ऑयल में 66 पैसे। जो नई कीमतें होंगी वो आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल की ₹73 पर लीटर, डीजल की ₹82 पर लीटर, केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल दोनों की ₹44 पर लीटर। ये जो कीमतें आज अनाउंस हुई हैं ये अब पूरा महीना मार्च का 1 मार्च से 31 मार्च तक लागू होंगी और फिर ओगरा पूरे मार्च के महीने की जो खरीद होगी पाकिस्तान की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की, उसकी जो कैलकुलेशन है वो फिर पूरे अप्रैल के महीने के लिए 31 मार्च को हुकूमत को भेजेगी और उसका फैसला होगा। और ये फैसला किया क्योंकि आइंदा पेट्रोल की कीमतों की जो तयन हुआ करेगा वो पूरे रुपए में हुआ करेगा, पैसे उसके साथ नहीं होंगे क्योंकि अमली तौर पे काफ़ी अरसे से ये पैसे जो हैं ये ख़त्म हो चुके हैं। मिनिमम जो कॉइन है वो ₹1 का पाकिस्तान में इस वक्त जो है लागू है, लीगल टेंडर जिसे कहते हैं। हुकूमत ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और दीगर संगीन वारदातों में अदालतों को मतलूब और बैरून मुल्क मफरूर कलदम तंजीमों के रहनुमा बरहमदाग बुगटी और शेर मोहम्मद उर्फ शेरा की गिरफ्तारी आलमी वारंट्स जारी कराने की मंजूरी दे दी। तर्जमान वज़ारत दाखिला के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने FIA की दरखास्त पर बरहमदाग बुगटी और शेर मोहम्मद उर्फ शेरा के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी दी। फाकी तहकीकाती इदारे FIA ने इंटरपोल से इन दोनों के रेड वारंट जारी कराने की दरखास्त दी थी। इन दोनों मुल्ज़मान के खिलाफ बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और कत्ल व गारत के मुकदमात दर्ज हैं। अदालतों से इन दोनों के दायमी वारंट्स भी जारी हो चुके हैं। कानून के मुताबिक ये दोनों मफरूर और मतलूब मुल्ज़म हैं। इन दोनों को कानून के कटहरे में लाने के लिए इंटरपोल के ताउन से रेड वारंट जारी कराने का फैसला किया गया है। नाज़रीन, हुकूमत ने गैर फाल फौजी अदालतों की बहाली का मामला पार्लिमानी मुशावरत में तय कर ही लिया। हुकूमत के इत्तेहादी और अपोजिशन जमातें फौजी अदालतों को मजीद 2 साल देने पर रजामंद हुए तो पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं थी और तय पाया कि नई आईनी तरमीम में अमल दरामद का टाइम फ्रेम मुतय्यन होगा। निगरानी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। APS पेशावर के बाद बनने वाली फौजी अदालतें 2 साल मुद्दत मुकम्मल करके अवाइल जनवरी में गैर फाल हो गई थी। उन्हें तोसी देने के तकाजे पर पार्लिमानी मुशावरत शुरू हुई तो पहले मुखालफत नजर आई। फरवरी के तीसरे हफ्ते दहशतगर्दी की मुतअद्दिद संगीन वारदातों के बाद पार्लिमानी मुशावरती अमल तेज करना पड़ा। तजवीज थी कि फौजी अदालतों को 3 साल तोसी दी जाए। किसी ने 1.5 साल का कहा तो 2 साल पर इत्तफाक हो गया। एक रोड मैप टाइमलाइन के साथ एक तय हुआ है। उसके लिए एक ओवरसाइट कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी दोनों हाउसेस की मिलके उसको रेगुलर मीटिंग्स करें। पार्लियामानी मुशावरत की कुल 8 नशिस्तों में हुकूमत को मानना पड़ा कि अब सिविल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मौसर बनाएंगे। फौजी अदलिया के साथ ये भी तस्लीम करना पड़ा कि दहशतगर्दी को मजहबी तफरीक से अलग रखा जाएगा। मजहब के साथ दहशतगर्दी का कोई ताल्लुक नहीं है और जिसने भी बंदूक उठाई उसके खिलाफ हुकूमत भरपूर सख्ती के साथ उसको निपटा जाए। हतमी मुशावरत में पीपल्स पार्टी शरीक नहीं थी, ताहम नए इंतजामात की निगरानी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने से मुतालिक उसकी तजवीज मान ली गई। इन 2 सालों के बाद
जितने केसेस होंगे तब तक के एंटी टेररिस्ट जो कोड्स हैं वो फाल हो चुके होंगे। पार्लिमानी मशावरत के इत्तफाक राय को कानूनी मसवदा बनाने के लिए ज़ेली कमेटी का इजलास भी मुनक्किद हुआ। तय पाया कि आईनी और कानूनी तरमीम रवा हफ्ते सेनेट और आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली में पेश होंगी। दहशतगर्दी को रोकने के लिए इससे भी ज्यादा कोई इक़दाम उठाने पड़े तो हम सबको मिलकर उठाने चाहिए। कौमी सलामती कमेटी बिल के अंदर शामिल की जाएगी। तय पाया कि फौजी अदालतों का तसलसल 7 जनवरी से फाल तस्वुर होगा। सियासी जमातों ने मुतालबा किया कि अमल दरामद की यकीन दहानी वजीर आजम को खुद कराना चाहिए। इसाक डार ने खुर्शीद शाह से टेलीफोनिक राब्ता करके होने वाली पेशरफ्त पर एतमाद में भी लिया है। आसफा और बख्तावर भुट्टो के ट्विटर ने काम कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को इरफानुल्लाह मरवत की पार्टी में शमूलियत की तरदीद करना पड़ गई। जरदारी कहते हैं कि इरफानुल्लाह मरवत के साथ उठना बैठना है, लेकिन बात अभी पार्टी में शमूलियत तक नहीं पहुंची। कुछ लोगों ने खामाखाही ट्विटर ब्रिगेड को एक्टिव कर दिया है। मफाहमत के जादूगर आसिफ अली जरदारी को एक बार फिर हालात से मफाहमत करना पड़ी। इस बार साबिक सदर के बैकफुट पर खेलने की वजह बने इरफानुल्लाह मरवत। मुलाकात हुई थी, अभी पार्टी में आने की या ना आने की बात नहीं पहुंची। इरफानुल्लाह मरवत का ज्याला बनने की खबरें आई तो पीपल्स पार्टी के अंदर से ही सख्त रिएक्शन आया। आसफा और बख्तावर ने तो खुलकर इस फैसले की मुखालफत कर दी। अपने ही घर से उठने वाले इस तूफान को रोकने के लिए पहले बिलावल भुट्टो को इरफानुल्लाह मरवत की पार्टी में शमूलियत की तरदीद करना पड़ी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक जमहूरी पार्टी है और हमारे दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन इस इश्यू पर कोई फैसला नहीं हुआ, कोई ज्वाइनिंग नहीं हुआ। एक मुलाकात हुआ था और थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हुआ। और फिर दौरा हब के दौरान मीडिया टॉक करते हुए खुद आसिफ अली जरदारी ने इस खबर की तरदीद कर दी। इरफानुल्लाह मरवत से हमारा वास्ता है। इरफानुल्लाह मरवत जरूर कराची में रहते हैं, हमारा उठना बैठना है। पहले एक दफा हमारी पार्टी में भी रहे हैं, तो मुलाकात हुई थी। अभी पार्टी में आने की या ना आने की बात नहीं पहुंची। लेकिन साबिक सदर ने यह बात तो मान ली कि मुलाकात भी हुई थी और इरफानुल्लाह मरवत से उनका उठना बैठना भी है। आसिफ जरदारी ने तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार मुखालफिन को करार दिया और कहा कि कुछ लोगों ने ट्विटर ब्रिगेड को एक्टिवेट कर दिया। तो कुछ दोस्तों ने एक अफवाह फैला के जिसे कहते हैं ना ट्विटर ब्रिगेड को, वो एक्टिव कर दिया। तो ये होता रहता है। लेकिन जरदारी साहब भूल गए कि इरफानुल्लाह मरवत के खिलाफ जंग में ट्विटर के महाज पर उनकी अपनी साहबजादियां सबसे आगे थीं। और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल कहते हैं कि 70 साल में बलूचिस्तान के मसले को समझा ही नहीं गया। हुकूक मांगने पर पाकिस्तान मुखालिफ होने का ताना मिला। सी पैक में बलूचिस्तान के लिए मुख्तस रकम से दूसरे सूबे में मंसूबे बन रहे हैं। कोयटा प्रेस क्लब में बीएनपी के ज़ेरे एहतमाम इनायत लांगू की बरसी के मौके पर ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए सरदार अख्तर जान मेंगल ने कहा कि हुक्मरानों ने 70 सालों में बलूचिस्तान का मसला समझा ही नहीं। हुकूक मांगने पर तरक्की और पाकिस्तान मुखालिफ होने का ताना मिलता है। मजालिम की बात करें तो गालियां सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब हम अपने मसाइल के बारे में उनसे बात करना की कोशिश करते हैं या कोई नुकात रखते हैं ठोस सबूत के साथ, कहते ये तो वही जाहिल के जाहिल हैं, ये वो कबायली हैं, ये वो सरदार हैं, ये कभी भी पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहेंगे। सी पैक के हवाले से उन्होंने कहा कि सी पैक मंसूबा बलूचिस्तान के लिए नहीं, सी पैक के नाम पर जिन सड़कों का 3 बार इफ्तिताह हुआ उन पर सी पैक के 57 अरब डॉलर में से 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ। बलूचिस्तान के लिए मख्तस रकम से दूसरे सूबे में मंसूबे बन रहे हैं। पंजाब वालों ने सबको मामू बनाया है। पाकिस्तान इन 4 सूबों में बसने वाली अक़वाम को कहते हैं ना, या पाकिस्तान सिर्फ एक सूबे का नाम है? हाँ, अगर पाकिस्तान सिर्फ एक सूबे का नाम है जिसको पंजाब कहा जाता है तो बिल्कुल हम उसके गद्दार हैं भाई। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी के हवाले से अख्तर मेंगल ने कहा कि फौजी अदालतों की तौसी कराने वालों ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंकी है। जमहूरियत के दावेदारों ने अदलिया, वापडा समेत सब इदारों में फौज को बुलाकर अपनी नाअहली खुद साबित की है।